ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ। ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ 100% ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ E1 and E2 are any two disjoint events such that E1 union E2 is equal to S, and A is any given event of non-zero probability then ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ E1 ਗਿਵਨ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ E1 ਗਿਵਨ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ E1 ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ E1, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1। ਜੇ E1 ਲੱਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ A ਗਿਵਨ E1, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ A ਗਿਵਨ E1। ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2 प्लस E2 A गिवन E2, मतलब जिथे जिथे E1 लगा उसकी जगह आप लगा देना E2। बड़े ध्यान नाल समझ लिखना। जे E2 गिवन A का फार्मूला बनाना होए, हुण पहले नंबर ते लगा E2, इत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पा दो, इन्हां दोवां नूं इंटरचेंज कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, जो उपर लिखा वो थले लिख दो, इधर करके लिख देना। एक ही गल विचकार प्लस का सही नहीं है, तो नाल हुण जिथे जिथे E2 लिखा उसकी जगह पा दो E1। सिर्फ फार्मूला बनाना तुहानूं मैं सिखाता है। ध्यान दे नाल पहला सम हो सकता थोड़ा घट समझ लगे, दूजे तीजे सम तो पूरी तरह पता चलना शुरू हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन, सब तो पहला आप एक्सरसाइज 13.3 का ना 13.3 का सैकेंड क्वेश्चन करना है। देखो भी बड़े ध्यान दे नाल। सैकेंड क्वेश्चन करन लगे पहला आप, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ध्यान दे नाल स्टेटमेंट पढ़नी है। 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। सैकेंड बैग आ जाएगा। देखो जरा पहला डाटा बना लेना तुसी, पहले बैग च 4 रेड है 4 ब्लैक बॉल है, दूजे बैग च 2 रेड है 6 ब्लैक बॉल है। तुसी अद्धा हर सम च अद्धा लिखना है। E1 फिर अगे पाना E2, फिर पाना A। पहला E1 पाना, E2 पाना, A पाना। पहला आ लिया ईवेंट लभनी आप हर सम च इदा ही फ्रेम करना है। फिर इत्थे पाना दी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बाद च इत्थे पाना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर इत्थे पाना प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, बाद पाना प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। इन्हां दी वैल्यू लभनियां ते बाद तुसीं लाउणा फार्मूला। सम च 2 ईवेंट की गल कीती होएगी, एक ईवेंट गिवन होएगी, उसदी पछाण हुंदी बेस थ्योरम। देखो जरा जिहड़ा E1 E2 है, मैं थोड़ा साइड ते समझाना। जिहड़ा E1 E2 है वो ज़्यादातर फस्ट लाइन विचों या लास्ट लाइन विचों निकलता है। अगे देखो जिहड़ा A ईवेंट है वो 80% सम च लास्ट सैकेंड लाइन चो निकलता है। ये ध्यान देना तुसीं, जिहड़ा ए ईवेंट है ना 80% सवालों च लास्ट सैकेंड लाइन तो निकलता है। ये सानूं दो बारी पढ़ांगे तो पता चलेगा।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਬੈਗ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E1 E2 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 1/2 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਆਫ ਦੀ 2 ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, 1 ਆਫ ਦੀ 2 ਮਤਲਬ 1 ਉੱਪਰ 2 ਥੱਲੇ, ਜੇ 1 ਆਫ ਦੀ 3 ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, 1 ਆਫ ਦੀ 3 ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ 3 ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3 1/3 1/3, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3 1/3 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਆਫ ਦੀ 2 ਬੈਗ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ। ਹੁਣ 1 ਆਫ ਦੀ 2 ਬੈਗ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E1 ਤੇ E2 ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ 1/2। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, E1 ਤੇ E2 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। E1 ਤੇ E2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਅ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੈਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈੱਡ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ A ਇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ A ਇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ A ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਬੋਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ। A ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੋਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੋਂ ਜਾਂ E1 ਜਾਂ E2 ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਬੈਗ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ E1 ਮੰਨ ਲਿਓ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ E1 ਮੰਨ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, E1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਬੋਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਬੈਗ, ਤੇ E2 E1 ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ E2। E1 ਤੇ E2 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। E2 ਆਣਾ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ, E1 ਦਾ ਉਲਟਾ E2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ A ਗਿਵਨ E1, A ਗਿਵਨ E1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਗਿਵਨ E1। E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। A ਗਿਵਨ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ 8। ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 4, ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ 8। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4/8। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ 1/2, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਮ ਬੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਗਿਵਨ E2 ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਬੋਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 2, ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ 8। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ 2/8। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਬੈਗ। ਫਸਟ ਬੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ E1 ਗਿਵਨ A ਕੱਢਣਾ ਬਾਏ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ। ਦੋ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਰੈੱਡ ਬਾਏ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ। E1 ਗਿਵਨ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 A ਗਿਵਨ E1 ਪਲੱਸ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ E2 A ਗਿਵਨ E2, A ਗਿਵਨ E2। E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੇ A ਗਿਵਨ E1 ਦੀ 4/8। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਹੁਣੇ, ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ 1/2 ਤੇ A ਗਿਵਨ E2 ਦੀ, A ਗਿਵਨ E2 ਦੀ 2/8। ਇੱਧਰੋਂ 16 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 16 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 16 ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 16 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਇਹ 16 ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ LCM ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 16 ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਆ ਪੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ 2 ਲਿਖੇ ਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ। ਇਸ 16 ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰੋਂ 4 ਲਿਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 4 ਲਿਖੋ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ 1 × 2 2 ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4/6 ਹੋ ਗਿਆ, 4/6 ਹੋ ਗਿਆ 2/3, 4/6 ਹੋ ਗਿਆ 2/3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ,
थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट करो। वन ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज it is known that 60% reside in hostel 60% reside in hostel ਹੁਣ 60% reside in hostel ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ E1 ਇਹ E1 ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 60/100 ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 40% ਆਰ ਡੇ ਸਕੋਲਰ 40% ਆਰ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਹੁਣ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਨੋਟ ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਸਟਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇ ਸਕੋਲਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 60% ਬੰਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ 40% ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ E1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ E2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ 60/100% ਲਗਾਣਾ ਤੇ E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ 40/100 ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਥੀ ਸਮ ਹੈਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਡੈਟ 30% ਆਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਰਿਸਾਈਡ ਇਨ ਹੋਸਟਲ ਅਟੇਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ 30% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ A ਆਇਆ 20% ਆਫ ਡੇ ਸਕੋਲਰ 20% ਆਫ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਅਟੇਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ देयर ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 20% ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ A ਆਇਆ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ one student is chosen at random from the college ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਆ A ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਈਵੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ A ਈਵੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ E1 ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ E1 ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਸਟਲਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ E1 ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ E1 ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ E2 ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E2 A ਗਿਵਨ E1 A ਗਿਵਨ E2 ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਸਟਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ E1 ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਸਟਲਰ E1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਹੋਏਗਾ E2 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ ਸਕੋਲਰ A ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਟੇਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੁਣ E1 60% ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 60/100 ਯਾਨੀ ਕਿ 6/10 ਆ ਜਾਏਗਾ E2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ ਸਕੋਲਰ 40/100 4/10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੇ ਸਕੋਲਰ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਰਾ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ A ਗਿਵਨ E1 ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਸਟਲਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਡੈਟ 30% ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਇਨ ਹੋਸਟਲ ਅਟੇਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਰੀ ਇਹ 30% ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30% ਯਾਨੀ ਕਿ 3/10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ A ਗਿਵਨ E2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ 20% ਆਫ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਅਟੇਨ A ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ A ਗਿਵਨ E2 ਆ ਜਾਏਗਾ 20% ਯਾਨੀ ਕਿ 2/10 ਆ ਜਾਏਗਾ E1 ਗਿਵਨ A ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬਾਏ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ E1 ਗਿਵਨ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 A ਗਿਵਨ E1 ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 A ਗਿਵਨ E1 ਪਲੱਸ E2 A ਗਿਵਨ E2 ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/10 ਤੇ A ਗਿਵਨ E1 ਦੀ ਹੋਈ 3/10 ਇੱਥੇ ਵੀ 6/10 3/10 100 ਕਾਮਨ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 4/10 ਇੱਧਰ 2/10
100 कॉमन एलसीएम आ जाना, वो कटाया जाना, उपर 6 3 का आ जाना 18, उपर 6 3 का 18 आ जाना, प्लस 4 2 का 8, 18/26 आ जाएगा, यानी कि 9/13, यानी कि 9/13। वेखो मैं रफ वर्क करने की लड़ ही नहीं पई, मैं कॉमन एलसीएम सीधे कट्टी जान दिया, कोई रफ वर्क करने की लड़ नहीं पैंदी भी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन वाल ध्यान नाल देखो, वो मतलब विच रहिंदे आ 3 4 क्वेश्चन वो करावांगे आपां, पहला 7th देखो सौखे सौखे करा लीए। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, E1 हो गया डैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर, ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर। पहला स्कूटर ड्राइवर की गल होंदी भी है ना, E1 ईवेंट में मान लेने आ कि वो स्कूटर ड्राइवर होएगा पर्सन। E2 डिनोट हो गया डैट ही इज़ ए कार ड्राइवर, ही इज़ ए कार ड्राइवर। तो E3 ईवेंट हो गया डैट ही इज़ ए ट्रक ड्राइवर। 3 चीज़ों की गल होंदी पई ही, डैट ही इज़ ए ट्रक ड्राइवर। देखो जरा मैं सम इदा स्टार्ट कर लिया पहली लाइन पढ़ के, ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर, ही इज़ ए कार ड्राइवर, ही इज़ ए ट्रक ड्राइवर। हले कैपिटल ए नहीं पता, इस 3 आ गई, डिनोमीनेटर च 3 लगनगियां, इस 3 ईवेंट्स आ गई। मैं 2 का फार्मूला कराया ही ना, 3 का भी आ सकता, 4 का भी आ सकता। ये ईवेंट हले मैनूं पता नहीं गा, पर मैं E1 की तो E2 तो E3 की प्रोबेबिलिटी वेख लेना कितनी आती पई है। E1 E2 तो E3 की प्रोबेबिलिटी वेख लेने आप कितनी आती पई है। चलो इत्थे E3 पाने, तिन्हों की प्रोबेबिलिटी वेख लेने। वेखो जरा हुण 2000 स्कूटर ड्राइवर है, हुण प्रोबेबिलिटी 2000 ना लिख दिओ, प्रोबेबिलिटी कभी 1 तो वड्डी नहीं होंदी। इनू लिखना 2000/12000 प्लस करके देखो टोटल कितनियां एंट्रियां गईयां। इधर 2000 4000 तो 6000 प्लस करांगे तो 12000 ही आ जाएगा ना। इनू 2000/12000 लिखना, यानी कि पहली एंट्री आनी 2/12, पहली एंट्री आनी 2/12, 2/12। बाद आप E2 लिखते हैं, थोड़ा खुला खुला कर लेना। कार ड्राइवर है 4000, यानी कि 4000/12000, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी आई नहीं अपने को 4/12। कटिंग अगे भी होंगी 1/6, इतने भी होंगी 1/3। मैं नहीं की, मैं डिनोमीनेटर सेम रखना, मैं रफ वर्क करना नहीं ना चाहता, मैं रफ वर्क करना औखा लगता है इस करके। ट्रक ड्राइवर है 6000, 6000/12000, 6/12 आ गया, 6/12 आ गया। E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी कट ली। अगे देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। उन्होंने स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आ है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट की आ है, ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की आ प्रोबेबिलिटी दी, रिस्पैक्टिवली वर्ड लगा ना। हले आपको कुछ नहीं पता लगा, कोई गल नहीं, पूरी सम की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर दूजी लाइन पता लगती है। पहला पूरे सम की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर दूजी लाइन पता लगती है। वन ऑफ द इंश्योर्ड परसन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ये पक्की गल होगी, कहना जिहदा इंश्योरेंस होया उहदा की होना है एक्सीडेंट। वन ऑफ द इंश्योर्ड परसन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक कैपिटल ए ईवेंट बन गई। ये अपनी कापी तो इदा ही लिखना, कैपिटल ए ईवेंट। इंश्योर्ड परसन मीट्स विद एक्सीडेंट, मीट्स विद एक्सीडेंट। हुण ए गिवन E1 का मतलब ए गिवन E2 का तो ए गिवन E3 का, इन्होंने सारिया दी वैल्यू कढ़नी आपां। ए का मतलब है कि परसन का हो रहा एक्सीडेंट, ए का है मतलब परसन का हो रहा एक्सीडेंट गिवन E1 जो बंदा है स्कूटर ड्राइवर, जो बंदा की है स्कूटर ड्राइवर। हुण देखो जरा स्कूटर ड्राइवर, हुण आ लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट, ए गिवन E1 है, या ए गिवन E2 है, या ए गिवन E3 है। 0.01 यानी कि 1/100 हो जाएगा, 0.03, 3/100 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 15/100, 15/100। अगे देखो लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर। आप स्कूटर ड्राइवर की कढ़नी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर, यानी कि स्कूटर ड्राइवर तो E1 है सी, स्कूटर ड्राइवर तो E1 है सी। आप आला फार्मूला होना वेखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। फार्मूला की बनना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1। ऊपर तो ए आएगा ना, थले जो ऊपर लिखा वही थले लिख दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A given E3 ध्यान नाल वेखना 3 आने थले प्लस 3 आने क्योंकि 3 की गल होंदी पई है ना। हुण E1 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखो जरा E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हैगी है 2/12। मैं अगले पेज पर लिख लगा जगह घट है मेरे को 2/12 A गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी चैक कर लेना 1/100 हैगी है। पिछले पेज तो देख लेना ना तुसी 1/100 हैगी है 2/12 इंटू 1/100। अगे देखो यदि हैगी अगे E2 की 4/12 है A गिवन E2 की 3/100 है वही अगे 6/12 है वही 15/100 है। हूँ इतों 1200 LCM आना इधरों भी 1200 आना 1200 आना ना मल्टीप्लाई करके यदा कॉमन LCM 1200 आना कटिया जाना सीधा ही लिखने की लोड़ ही नहीं। इधरों 2 आ गया 4 इंटू 3 12 आ गया। देखो कोई रफ वर्क नहीं मैं करन दिया प्लस करके वेख लेना 2/104 1/52 आपको एक भी रफ वर्क करने की लोड़ नहीं पई। 8th सम देखो फ्रेम कर लिया करो सम इदा E1 कर लिया करो E2 कर लिया करो जे 3 होने E3 कर लिया करो। 8th सम च मैनू पता 2 है A कर लिया करो इत्थे लिख लिया करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इत्थे लिख लिया करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इत्थे लिख लिया करो A गिवन E1 इत्थे लिख लिया करो A गिवन E2। हर सवाल च इदा लिख ही लिया करो आही वैल्यू कड्ढनियां होंदियां बस हर सम च आही वैल्यू कड्ढनियां होंदियां। देखो जरा 8th सम अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीनस 2 मशीनों की गल होंदी पई है सीधा ही पता लग गया। पहली लाइन पढ़दे सारी मशीन A नूं लिख लो E1 तो मशीन B नूं लिख लो E2। आ देखो जरा सम किदा पहली लाइन पढ़ी मैं सम स्टार्ट करना E1 डिनोट्स मशीन A E2 डिनोट्स मशीन B अगे A इवेंट वेखते हैं की है क्वेश्चन पढ़ते पहला पास्ट रिकॉर्ड शो डैट मशीन A प्रोड्यूसिस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ द आउटपुट मतलब मशीन A की आउटपुट हैगी है 60% यानी कि मशीन A हैगा सी E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 60% यानी कि 6/10 यानी कि 6/10। अगे पढ़ो जरा मशीन B प्रोड्यूसिस 40% ऑफ द आइटम मशीन B कितनी प्रोड्यूस करती भी 40% यानी कि 40/100 4/10 40/100 4/10 आ इक्वल टू है जी। अगे देखो जरा फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन A एंड 1% ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या था मशीन A दी 2% डिफेक्टिव है मशीन B दी 1% डिफेक्टिव है। एक्चुअल जो एक हिसाब का A गिवन E1 ही है A गिवन E2 ही है पर A इवेंट हले आप डिफाइन करनी है। All the items were put into one stock pile then one item is chosen at random and is found to be defective। पक्की गल है कहता एक स्टॉक पाइल सारिया आइटम पातियाँ उतों आप चूज की तो आइटम कि बाहर आई डिफेक्टिव आइटम बाहर आई डिफेक्टिव ए इवेंट हो गया आइटम इज डिफेक्टिव आइटम इज डिफेक्टिव। हूँ ए का मतलब आइटम डिफेक्टिव होनी चाहिए है गिवन E1 का मतलब मशीन A चो डिफेक्टिव होनी चाहिए मशीन A चो यदा मतलब हो गया डिफेक्टिव पर मशीन B चो। हूँ मशीन A च डिफेक्टिव है 2% तो मशीन B च डिफेक्टिव है 1% यानी कि A गिवन E1 आएगा एक शब्द 2/100 यदा आएगा अपने को 1/100 यदा 2/100 आना यदा 1/100 आना। अगे क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट लाइन देखो जरा फाइंड दी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B। हूँ हर सवाल च मैं E1 मनता पाया प्रोबेबिलिटी के नाल जो लगा सी ना मैं E1 मनी जाता पाया सी। इत्थे प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B लिखिया ना मशीन A हैगा सी E1 तो मशीन B हैगा सी E2 यानी कि एंड ते आपां E2 गिवन A कढना है। इत्थे प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B लिखिया है अपना फार्मूला किद्दां लगना वेखो जरा मशीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B लिखिया ना E2 गिवन A कढना आपां E2 गिवन A दा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2 थले E1 पहला पाना फिर A गिवन E1 पाना प्लस E2 पाना
ए गिवन E2 बना, ए गिवन E2 की वैल्यू इधर है 4/10, ए गिवन E2 की हैगी 1/100, तो 4/10 1/100, 6/10 6/10 2/100। इतने 1000 कॉमन एलसीएम कट्टे जाने, उपर आना 4, थले आना अपने को 12 + 4, यानी कि 4/16, यानी कि आंसर की आना अपने को 1/4। चेक कर लेना ही आंसर होएगा। अगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर ABC। आप सम कि स्टार्ट करना देखो जरा। E1 डिनोट मशीन ऑपरेटर A, मशीन A ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर A कर लो। E2 डिनोट मशीन्स B, E3 डिनोट मशीन C। 3 वाला है ना सम, 3 का ध्यान रखना पैना आपां, यानी कि ए ईवेंट कढ़ने वाले आपां सम नूं फ्रेम कर लो। E1 कढ़ लो, E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कढ़ांगे, बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ए गिवन E1, ए गिवन E2, ए गिवन E3। ये बना लेना आपां। हुण क्वेश्चन बनांगे आपां दोबारा। फस्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसिस 1% डिफेक्टिव आइटम। बच्चों के दिमाग च आ जाता शायद E1 की प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव वर्ड लगा है। वेयर एज अदर 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम रिस्पैक्टिवली। डिफेक्टिव आइटम की गल होंदी भी है। ए इज़ ऑन जॉब, जड़ा मशीन ऑपरेटर ए है वो जॉब तो है 50% ऑफ टाइम, मशीन B वाला जॉब तो है 30% ऑफ टाइम, मशीन C वाला है 20% ऑफ टाइम। जो इन्हों प्लस करोगे, आ 3 नंबर में प्लस करोगे 1 आएगा, परसेंट हटा के अपून 100 लगता ना, परसेंट हटा के अपून लगता 100, इन्हों प्लस करांगे अपने को आएगा 1। यानी कि एक हिसाब का ये E1 है, आ E2 है तो आ E3 है। बच्चे इनू E1 E2 E3 मान लेंगे है, क्योंकि इन्हों प्लस करके 1 नहीं आता पाया। E1 E2 E3 प्लस करके 1 आना चाहिए। यानी अगे पढ़ना आप डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूसड। क्या था उन्होंने कहना जी आइटम प्रोड्यूसड होनी है ना डिफेक्टिव प्रोड्यूस होनी है, इनू ए मान लाँगे आप, ए मान लाँगे। गिवन इवेंट होगी डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूसड। वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी डैट इट वॉज प्रोड्यूसड बाय मशीन ए, मतलब E1 की कढ़नी आप, E1 गिवन ए कढ़ना। देखो जरा हूँ ए है जी जॉब 50% ऑफ टाइम, पहला ए हो गया डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूसड। E1 है 50% ऑन टाइम, यानी कि 50/100, 5/10, 50/100, 5/10। B इज़ ऑन जॉब 30% ऑफ टाइम, B उन्होंने क्या ही जॉब है 30% ऑन टाइम, 30/100, 3/10। अगला है 20%, यानी कि जी पहली लाइन है 20/100, 2/10। इन्होंने प्लस करके देखो 1 आता पे ना, ए E1 E2 E3, ए गिवन E1 का मतलब ए का मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होती भी है, E1 का मतलब पहली मशीन चो, इतने ये डिफेक्टिव आइटम दूजी मशीन चो, डिफेक्टिव आइटम तीजी मशीन चो, ये पहली लाइन चो निकलेगा, क्योंकि पहली लाइन से स्पैशल मैंशन है फस्ट ऑपरेटर प्रोड्यूसिस, फस्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, दूजे दो है 5% तो 7%। परसेंट हटाइए अपोन लगता 100, परसेंट हटाइए अपोन लगता 100। ये अपने को आ जाना। हूँ एंड तो इन्होंने कहा वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी डैट इट वॉज प्रोड्यूसड बाय मशीन ए। मशीन ए का मतलब आप E1 गिवन ए कढ़ना, मशीन ए का मतलब आप E1 गिवन ए कढ़ना, तो यदा फार्मूला की बनना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 जो ऊपर लिखा वही थले लिख दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2 प्लस डिनोमीनेटर च ही आना है E3 A गिवन E3 तीन की गल होंगी भी ना, डिनोमीनेटर च तीन आनी है। हुण इहदी वैल्यू अपने आप भरियो, इन्हां दी वैल्यू अपने आप भरो, तुसी सोल्व करोगे बड़े आराम दे नाल सोल्व हो जाएगा। सारियां वैल्यू भरो, डिनोमीनेटर कट लियो, इनू अपने आप सोल्व करियो, ये नहीं मैं करन लगा, ये डू योरसेल्फ। तुहाडा होमवर्क है सारे सम जिहड़े मैं कराए रिपीट करो, प्लस एग्जाम्पल 19 तो एग्जाम्पल 20 करो, प्लस एग्जाम्पल 19 तो एग्जाम्पल 20 करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।